चलो फिनिश करना है, स्टार्ट करके इसको आज, ठीक है। सो छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा आराम से। चैप्टर इज न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस और सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप लोग को मालूम है, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है, विच हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। सो you might have talked about electrons a lot in deliberation and chemistry, orbit, orbitals, SPDF, distribution and all that, right? So majority of your chemical behavior, chemical properties, or the entire chemistry, you can say it is the electron ka game, how electrons are distributed across the nucleus. But you have typically a matter has physical properties as well, right? What is the mass, what is the density, right? These kind of macroscopic properties. These macroscopic properties are primarily driven by nucleus, right? How heavy is your nucleus, how dense is your nucleus. So you can just, if you want to classify overall matter ka properties versus subject, right? So electrons typically drive your chemistry of a topic, of a matter, and protons and neutrons typically decide the mass, density and the macroscopic properties, ठीक है। You can also say to certain extent what is the natural state of a matter to be in, like for example at room temperature it is gas or liquid or solid. That is also typically decided by the nucleus, ठीक है। So and you know that the chemical properties of water, for example, does not change whether it's a gas, it's a water vapor or water, right? So electrons do not kind of interfere in the physical properties, and protons do not interfere in the chemical properties. That's how it is. So today's focus is primarily nucleus. So typically यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो ये है, यूनिट ऑफ atomic mass, that will be the first topic. You might already be knowing all these things, just a refresher, okay. Unit of atomic mass. Then we will talk about very important and topic from exam point of view, nucleus density, ठीक है। एंड इसके पहले, डेंसिटी के पहले हमको साइज पता होना चाहिए, तो साइज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन वी विल गो टू द पार्ट व्हाट बाइंड्स द न्यूक्लियस टुगेदर, राइट। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर, what binds the nucleus. मतलब why not proton being so positively charged particles, why not they just go away? What is the force responsible behind holding protons together in such a small area, when we know that there has there's a big Coulomb electrostatic force of repulsion, right? So that is the main learning of this chapter, you can say. Then we will talk about that is binding energy typically, right? So we'll talk about binding energy, and in the last we'll talk about nuclear force, some points regarding nuclear force, and then nuclear reactions, nuclear fission and nuclear fusion. This is a very brief introduction, right? The majority of the radioactivity topic has been taken out from the syllabus, so we'll just talk about briefly what fission and fusion is, and some sample reactions of fission and fusion, and how to do some numericals based on this, because that is important. Numericals. Okay, so this is the overall theme of the chapter. Okay, so let's begin. Unit of atomic mass. तो atomic mass, see जनरली कार्बन एटम का अगर हम मास देखेंगे ना, एक कार्बन एटम
So this is in the order of 10 to the power minus 27 kg. ठीक है. So now we know this, but earlier, right, when we did not have anything to measure it, so this is, अगर आप इसको एक एटम को किसी भी वेइंग मशीन में रखोगे तो वेइंग मशीन में कुछ भी नहीं होने वाला है, to be honest, because it is so less, minus 27 kgs here. So that means हमारा kg या फिर ग्राम या मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, all the units are not fit for the purpose. The purpose is to weigh or to measure the mass of atoms. So that was a big challenge at some point in 19th century. It was a big challenge कि how do we design a unit for atoms का mass, जो इतना कम है. कौन सी यूनिट? अभी यूनिट के लिए क्या प्रॉब्लम है कि यूनिट के लिए आपको एक कोई सैंपल चीज चाहिए जिसके अगेंस्ट आप बाकी सब मेजर कर सको. So for example, if we have 1 meter, so we know this is 1 meter. Okay, so this is 2 meters, this is 3 meters, like that. अभी atoms के लिए क्या लेके आए वो standard. So this idea came to one person, and I think it was Bohr's and some other person combined idea. कि why not use an atom का mass as a unit of atom. किसी एक एटम को डिसाइड करते हैं और उसी एटम के मास को स्टैंडर्ड लेके बाकी सबका मास लेते हैं. तो पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट हुई, बट देन हाइड्रोजन में प्रॉब्लम क्या हो गई, हाइड्रोजन थोड़ा सा, एक तो it does not react very well with many compounds. Darsh, you can come here if you want. So hydrogen का problem क्या थी? It does not have many combinations with many of the substances. So hydrogen काफी दिन तक रहा, but उसके बाद finally decide हुआ कि carbon is the best possible atom. क्योंकि कार्बन जो है वो नियरली सारे एलिमेंट से कंबाइन करता है. Right, it's a very friendly atom. It combines with almost each and every element which we know. That is around 108 elements or 118 elements. Out of 118, I think 12 or 13 are our synthesized. बाकी जो natural है around 100 है, right? तो वो जो natural 100 है उन सबसे वो combine करता है, इसलिए कार्बन को डिसाइड किया गया. और यूनिट जो डिफाइन की गई, पहले इसको AMU बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट. लास्ट 3 या 4 साल पहले जो अपना यूनिट्स का जो बॉडी है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, इन्होंने बोला कि AMU को हटा के इन्होंने सिर्फ U बोल दिया, यूनिफाइड मास. U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास. सो इसके लिए या तो कभी किसी पुरानी बुक्स के लिटरेचर में आपको AMU मिल जाएगा, बट मोर करेक्ट इज स्मॉल u. AMU इज एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U अगर लिखा है इसका मतलब है यूनिफाइड मास. और इसको डिफाइन कैसे किया गया है? डिफाइन ऐसे किया गया है, वन U. सो यहां पे सिर्फ एक कंपैरिजन है कि इट इज mass of basically mass of one C12 atom and divided by 12. So basically approximately 1 के आसपास ही आ जाता है. ठीक है, mass of basically 1 carbon atom divided by 12. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 के आसपास ही आता है. आपको सारा जो अभी यूनिट का इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि हमें ग्राम्स में, किलोग्राम्स में कुछ नहीं करना है, हमको यू में ही बात करनी है. सो 1 U इज दिस. ठीक है, सो अब बाकी किसी का भी जब हम बोलेंगे, ठीक है, बाकी किसी, सॉरी ये 1 नहीं आता, ये 12 अप्रोक्सीमेटली. हाँ, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 ओनली. अब बाकी किसी में अगर आप बोलोगे कि जैसे हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन इज लेट्स से 16 है ना, 16 U. तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज एक्चुअली, अगर आप मास ऑफ कार्बन एटम को 12 से डिवाइड करो तो जो नंबर आएगा उससे ऑक्सीजन का एक एटम 16 टाइम्स हेवियर है. समझे बात को? मास ऑफ कार्बन एटम को आप 12 से डिवाइड करो और उसको फिर 16 से मल्टीप्लाई करो, सो ये जो नंबर आएगा ये ऑक्सीजन का
एक एटम का मास है। दिस इज हाउ वी हैव टू बी इंटरप्रेटिंग, ठीक है। इट्स अ फेयरली स्मॉल यूनिट, सो हम लोग सब जगह यू ही यूज करेंगे, ठीक है, यूनिफाइड मास, ठीक, ओके। अब जाते हैं हम लोग न्यूक्लियर डेंसिटी की तरफ। दिस इज कॉल्ड साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पे कुछ चीजें आप पहले समझ लो कि साइज ऑफ न्यूक्लियस से पहले शेप। अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस का शेप एक्सपेरिमेंटली पता भी किया गया है, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको एक प्रॉपर स्फेयर लेते हैं, ठीक है। इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, इट इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल टू बी प्रिसाइज, बट हमारे जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो हम लोग न्यूक्लियस को एक स्फेयर लेके चलेंगे। अब कोई भी स्फेयर की साइज में सिर्फ क्या चीज होती है, सिर्फ और एक चीज, उसकी रेडियस, राइट। रेडियस डिसाइड्स द साइज ऑफ अ स्फेयर। सो इसीलिए न्यूक्लियस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम टिपिकली आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट्स की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और फाइनली निकल के आया कि रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड रूट ऑफ द मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गाइस, रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस is directly proportional to the atomic mass number. This A is what? A is atomic mass number. I hope ये आप सभी को पता होगा atomic mass number क्या होता है। This is number of protons plus number of neutrons, right? तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो नंबर मिलेगा, उस नंबर के थर्ड रूट के प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ज्यादा मास नंबर होगा ऑब्वियसली साइज उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गोल्ड के न्यूक्लियस की, जिसका मास नंबर अबाउट 79 होता है, और एक हाइड्रोजन एटम की जिसका मास नंबर 1 होता है, ठीक है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो रेडियस में ये रिलेशन निकल के आएगा, ये 79 पावर 1/3 होगा, ये 1 की पावर 1/3 होगा। सो ऑब्वियसली उसी रेशियो में रेडियस डिसाइड होगी, तो जितना ज़्यादा मास नंबर उतना ज़्यादा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमको निकालनी है न्यूक्लियस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये पहले तो ये चीज़ समझ लो कि न्यूक्लियस की डेंसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं 118, सबके पास एटम है, सबके पास न्यूक्लियस है, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है और उसकी वैल्यू होती है अबाउट 2.7 into 10 to the power 13 kg per meter cube approx 2.7 या 2.23, आई एम नॉट और रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में इसकी लिखी वैल्यू मिल जाएगी, एक क्वेश्चन में करके निकाल के बताइए, ठीक है। तो ये होती है या फिर ये होती है, बट होती इसी ऑर्डर की, 10 की पावर 13 की ऑर्डर, एंड इट इज सेम फॉर ऑल। तो अभी ये क्या मैजिक है कि साइज तो सबका अलग अलग है, क्योंकि साइज तो हम देख रहे हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड रूट ऑफ एटॉमिक मास। अगर सबका साइज अलग अलग है तो डेंसिटी कैसे सेम आ रही है? तो आपको मालूम है कि डेंसिटी में दो चीजें होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जिस रेशियो में मास बढ़ रहा है उसी रेशियो में वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो डेंसिटी सेम हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रूफ मैं भी करने वाला हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से लिख के आता है कि प्रूव दैट the radius, also prove that the density of all the nucleus is same or the density of nucleus is constant, ठीक है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना डेरिवेशन, 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, ठीक है। इसको करके देखिए,
तो ये याद रहेगा कि कभी डेंसिटी का, अगर न्यूक्लियर की डेंसिटी का रेशियो का क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस न्यूक्लियस वर्सेस दैट न्यूक्लियस और व्हाटएवर न्यूक्लियस टू व्हाटएवर न्यूक्लियस, आपका आंसर सिंपल होगा 1:1, 1:1। सो यहां से देखो R इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं हमेशा से। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया है R0, और इस R0 की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता रहा हूँ, इज इन द ऑर्डर ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, या फिर 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। वो फर्मी इज 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक है। ये याद रखो चीज, ये R0 एक कांस्टेंट है, की वैल्यू ये होती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कहीं पर, बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला तो एक ही होता है, चाहे वो न्यूक्लियस हो चाहे कोई चीज़ हो। इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास जो भी होगा वो मास नंबर का ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि मास नंबर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पुट टुगेदर, राइट। सो इसको एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका मास मिल जाएगा। तो टिपिकली हम लोग मास और मास नंबर को सेम तरीके से लिख लेते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मास नंबर इज सेम एज मास। कई बार हमको ऐसा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये नियरली इक्वल भी होते हैं। जिस तरीके से हमने यूनिफाइड मास को डिफाइन किया है ना, तो उस तरीके से ये मास नंबर और मास कई बार सेम भी आते हैं। जैसे अगर कार्बन का 12 है तो कार्बन का मास नंबर 12, उसका मास कुछ 12.000 समथिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि, बट हाँ, जो भी मास होगा कहीं ना कहीं मास नंबर से जुड़ा हुई होगा। तो जितने उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होंगे उसी को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन का मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमने वहां पे ए लिख लिया इसको, क्योंकि प्रूफ हमें सिर्फ ये करना है कि दिस इज कांस्टेंट, ठीक। तो मास को लिख लिया हमने ए। वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई इंटू आर क्यूब गाइस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोल दिया कि न्यूक्लियस जो है हमारा वो स्फेरिकल है, और उसकी रेडियस अगर आर है तो उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से इसकी डेंसिटी डी आ गई, डेंसिटी आ गई ए अपॉन आर की वैल्यू हम ये चिपका देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब R0 a⁻1/3 इस का क्यूब विल हैव टू डू, दिस इज द रेडियस। सो यहां से वी विल गेट 3a/4 पाई R0 क्यूब एंड अगेन a। तो a की पावर 1/3 और 3 विल बी नॉक्ड ऑफ टुगेदर, सो इट इज जस्ट 1। सो a से a कैंसिल हो गया। सो दिस इज एक्चुअली 3/4 टाइम्स pi R0 cube. Now R0 was a constant whose value is this. R0 is a proportionality constant, pi is a constant, 3 is a constant. So अभी even though mass number का रोल size में है, the size matters when we talk about mass number, लेकिन density में दोनों कुछ ऐसा चक्कर हुआ है कि दोनों कैंसिल हो गए। So density हमारी constant है। So that proves, this proves D is constant। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है आपके एग्जाम के लिए, और इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताई थी 2.7 10⁻13 kg/m³। दिस इज प्रीटी हाई वैल्यू। आप अगर डेंसिटी के टर्म में सोचो, सो ये वाटर की डेंसिटी गाइस, जस्ट टू गिव यू अ व्यू, density of water is 1 into 10⁻³ kg/m³, and this guy is this. Now this puts a question here, water is ultimately made up of
एटम्स ओनली, उसका डेंसिटी इतना है, एंड खुद न्यूक्लियस का डेंसिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो इतना इतना डिफरेंस. सो हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस डेंसिटी डिफरेंस? You got the question? Water, which is made up of atoms only at the end of the day, has got a density in the order of 10 to the power 3, and the density of nucleus is coming in the order of 10 to the power 30. So why this difference is coming? So there is a lot of empty space inside. Yes, exactly. We have that kind of re-establishes the fact that lot of space in the atom is empty. ठीक है, तो दिस अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऐसा क्यों है, तो आपको आंसर ही लिखना होगा. दिस इज बिकॉज लॉट ऑफ स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एंड न्यूक्लियस इज जस्ट अ वेरी डेंस स्मॉल डेंस एरिया इनसाइड एटम. ठीक है, ओके. इसमें अब आप द काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैं साथ साथ करते चल रहा हूं ताकि वी कैन फिनिश द क्वेश्चंस आल्सो. इफ यू कैन जस्ट कम टू द टॉपिक nucleus or nuclei, you will see certain questions. You can see certain questions. You can come to page number 412. You come to page 412. देखो ये क्वेश्चन आप लोग ऐसा वर्बली भी कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, आप लोगों को सबको ये आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार ये सब पता है ना? Fine. किसी को नहीं पता हो तो जस्ट रीड इट, समटाइम्स द क्वेश्चंस कम. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, साइज ऑफ द न्यूक्लियस के सब टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर वुड बी 1:1. ठीक है, चलो फिर देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, आंसर वुड बी अगेन 1. क्वेश्चन 2, 3, 7 में आया सबको, द आंसर वुड बी 1 क्योंकि डेंसिटी इज ऑलवेज सेम. ठीक, अब एक थोड़ा वैरायटी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस. अब यहाँ पे वो रेडियस की बात कर रहा है, डेंसिटी की बात नहीं कर रहा है, रेडियस वुड बी डिफरेंट. ठीक है, सो दे हैव गिवन अस द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम. अच्छा, हमको मालूम है ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन हमारा मेन है. R0 तो कांस्टेंट है, आप इसको पहले एल्यूमिनियम के लिए यूज करो. यू नो दिस रेडियस, यू नो द एटॉमिक मास नंबर, इट इज 27, राइट? सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R0 एंड दैट R0 वैल्यू यू कैन यूज टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कॉपर. ठीक है, 3.6 से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 आ रहा है एग्जैक्टली, 4 तो वो आएगा उसका, हाँ 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. कर लेते चलो इसको, एक क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं. सो फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3. गाइस, a इज एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, तो 3.6 इज इक्वल टू R0 एंड दिस विल बी 27 टू द पावर 1/3. सो दिस विल बी 3.6, this will be 3. Now we want to find the radius of copper, which will be R0 times 64 to the power 1/3. 64 का क्यूब रूट हो गया 4. So this is R is equal to R4 R0. तो यहाँ डिवाइड कर लो दोनों को, तो R अपॉन 3.6. मैं इन दोनों को डिवाइड भी कर रहा हूँ ऐसा कि आप R0 की वैल्यू प्लग इन कर सकते हो. तो डिवाइड करो, R अपॉन 3.6 इज इक्वल टू 4 R0 अपॉन 3 R0. सो यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा R इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3.6. दिस इज 1.2, 4.8 फर्मी. ठीक है, सो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. सो अभी क्वेश्चन का 7 का सेकंड पार्ट जो प्रूफ हमने भी किया है बस वही है. प्रूफ दैट द इंटेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर, राइट? प्रूफ वी जस्ट डिड. चलो अभी आगे बढ़ते हैं टॉपिक में. दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, साइज एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आपको आते हैं.
अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको, नाउ वी आर गेटिंग इनटू द जोन ऑफ व्हाट बाइंड्स द न्यूक्लियस, द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट बाइंड्स द न्यूक्लियस। तो उसके पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक छोटा सा सब टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के डिटेल में हमें नहीं जाना है हमको अभी, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज टॉपिक टू अंडरस्टैंड, बट हमें ये समझना है कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसमें ये बोला था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों चीजें मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। जब उसने ऐसा बोला कि उसकी थ्योरी ऑफ फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी, तो उसने ये बताया कि इसका रिलेशन ये है कि एनर्जी और मास में इक्विवेलेंस क्या है, अगर आपके पास m मास हो एंड वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, सो e इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज द इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी डिटेल में तो नहीं जा रहे, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अपने को सिर्फ फॉर्मूला रखना है, e इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हाँ, एक चीज हमको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप देखो c स्क्वायर is going to be in the order of 9 into 10 to the power 16. So even a 1 gram mass can give you lot of energy in joules. ठीक है? So whenever mass disintegrates into energy, boom, there's a lot of energy you get, right? In fact, this is the basis of all the nuclear energy we are talking about nowadays. ठीक है, but अभी इस चैप्टर के लिए बस याद रखो E is equal to mc square. This is what we now. What will be the equivalence of one unit, one unified mass, one U या फिर one AMU? ये हमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। 1 AMU जो मास होता है, this is equivalent to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये आपको एग्जाम में जो बोर्ड का पेपर मिलेगा या कोई पेपर मिलेगा, आपको ये चीज टॉप पेज पे एक कांस्टेंट आपको दिया रहेगा। ये हमें कैलकुलेट नहीं करना होता, हालांकि कैलकुलेट कर सकते हैं हम मास इनटू सी स्क्वायर, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। 1 U और 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब इफ यू आर समहाउ एबल टू कन्वर्ट दिस मच, दिस इज एक्चुअली 1 U is the mass of a proton actually, to be एक हाइड्रोजन एटम which is 1 U. So अगर एक हाइड्रोजन एटम को डिसइंटीग्रेट करोगे तो आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी रिसीव होगी। दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से। ठीक, अब बात करते हैं जरा मास डिफेक्ट पे। वी आर गोइंग नाउ इन द जोन ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग। सो पहले जरा मास डिफेक्ट को समझते हैं क्या चीज है। एक न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन्स हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। सो इफ आई वर टू कैलकुलेट द मास ऑफ न्यूक्लियस लॉजिकली अगर किसी ने मुझे पूछा कि मास ऑफ न्यूक्लियस बताओ, तो बोलूंगा यार कि इट शुड बी अ सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट, मेक सेंस। और क्या होता है न्यूक्लियस में? यही दोनों चीजें होती हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियस, राइट। बट ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब मास मान लो कि कार्बन 12 है, कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 12, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। तो मैंने क्या किया, मान लो प्रोटॉन का मास x है तो 6 इंटू एक्स कर दिया, एंड न्यूट्रॉन का मास मान लो y है तो 6y कर दिया, एंड 6x प्लस 6y किया। ये जब जो नंबर आया, this was not matching with the nucleus of this. It was little more, मतलब mass of individual protons and neutrons put together was slightly more, not like कि एक 12 है तो एक 144 है, ऐसा नहीं है,
एक 12 है तो दूसरा 12.00004 या इस तरह, इतना डिफरेंस इस ऑर्डर का. देयर वाज अ स्लाइट डिफरेंस इन द mass of protons and neutrons put together versus the mass of nucleus, right? This was more. So इस बेसिस पे हमने एक टर्म कॉइन किया मास डिफेक्ट. मींस जब भी न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, कुछ तो हुआ होगा ऐसा कि न्यूक्लियस जब फॉर्म हुआ होगा फर्स्ट टाइम, जब भी बिग बैंग थ्योरी, ये सारे एटम्स बने होंगे, जो भी हुआ होगा, राइट? उस टाइम पे ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि थोड़ा मास कहीं गायब हो गया होगा, उसको बोल दिया मास डिफेक्ट. तो इस मास डिफेक्ट का एक फॉर्मूला निकाल दिया हमने. तो उस मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आप लोग जरा गौर करना, इज कॉल्ड डेल्टा एम. दिस इज इक्वल टू अच्छा, z इज द एटॉमिक नंबर, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन इज अ सिंगल मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, सिंगल प्रोटॉन मास, प्लस a minus z times mass of neutron. This was the 6x plus 6y thing I was doing, right? तो यहाँ पे z है, मतलब जैसे कार्बन के लिए जब 12 था, तो ये 6 is this z mass number, right? And जब 12 minus 6 करते हो आप, 12 minus 6, तो आपको मिलता है number of neutrons. So वही लिखा हुआ है a minus z, मतलब mass number minus atomic number would give you number of neutrons. I have multiplied that number with the mass of single neutron, so this gives me the total. When I subtract the mass of actual nucleus, right, experimentally found, that this difference, guys, would be your mass defect. This is called a mass defect. This is called mass defect. Mass defect समझ में आएगा आपको फॉर्मूला? It is very easy. Atomic number is equal to number of protons. Atomic number is equal to number of protons. तो वो मल्टीप्लाई किया अब एक प्रोटॉन के मास से, प्लस किया दिस इज a माइनस z, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस किया, उसको मल्टीप्लाई किया मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, पुट टुगेदर एंड देन उसमें सब्ट्रैक्ट किया मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस, राइट, एक्सपेरिमेंटली फाउंड. सो ये जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, राइट. नाउ द थ्योरी सेज कि व्हेन एवर, अब यहां पे थोड़ा सा डेलिब्रेशन मेरा रहेगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश मैं करूंगा. जनरली जनता को समझ में आ जाता है, बट ये आपके ऊपर है कि आपको चीज समझ में आएगी कि नहीं. आई विल गिव यू दिस बेसिकली ग्रुप का एनालॉजी, ठीक है. यहां पे थ्योरी ये दी गई कि यार ये मास कहीं गायब नहीं हुआ है. जो न्यूक्लियस जब भी फॉर्म हुआ होगा तो क्या हुआ होगा कि थोड़ा मास डिसइंटीग्रेट हुआ एनर्जी के फॉर्म में, और वो एनर्जी एक्चुअली कैलकुलेट की जा सकती है विद आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. सो दिस इज द what is EB? I'll tell you. This is called binding energy. Binding energy. What this means? Whenever nucleus had been formed, at that time, this much mass is disintegrated, and energy equivalent to this mass, which is EB, would have got released, you can say, in the environment, right? थोड़ा मास डिफेक्ट हुआ और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई. नाउ बिकॉज ये एनर्जी रिलीज हो गई है, अब जो ये न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पुट टुगेदर, विल कॉल इट न्यूक्लियॉन्स. अब ये न्यूक्लियॉन्स बाइंड हो गए हैं बिकॉज क्योंकि ये एनर्जी जो इनके पास से गायब हो गई. अब अगर इनको अलग होना है तो someone would have to come and give exactly this much amount of energy so that they can disintegrate into their individual existence.
which we have never seen, to be honest, right? It is just a theory, but it very well explains. जैसे कि आप समझो, मान लो आप लोग ग्रेजुएशन करने जाओ, let's take a costly city in terms of accommodation, मुंबई, ठीक है? और आप मान लो जैसे कि आपने सोचा कि मुझे यार अकेले रहना पसंद है, आई डोंट लाइक कि मुझे कोई परेशान करे पूरे टाइम, मैं सोने का मन हो तो लाइट जला दे, राइट, मेरा जब जगने का मन हो तो लाइट बंद कर दे, तो उस तरीके का। तो मुझे मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं पैसे ज़्यादा दे दूंगा, रेंट अफोर्ड करूंगा मैं, बट मैं अकेले रहना चाहता हूँ। देन यू स्टार्टेड लिविंग अलोन, अपना हिसाब किताब। ऐसे देखो, ऐसे 4 और ग्रुप आपके दोस्त थे, जो एक आप और 3 और, ठीक है? आपने शुरू कर दिया अकेले रहना, फिर आपको समझ में आया कि यार मुंबई में तो गुजारा नहीं हो रहा है, घर से बार बार पैसे मंगाने पड़ रहे हैं, तो सेविंग का कुछ तरीका निकाला जाए। तो आपने एक सेविंग का तरीका क्या है? वैसा तो है नहीं कि जाके कुछ और हरकतें करना शुरू कर दोगे। तो भाई आपने 4 लोगों ने एक ग्रुप बनाया, लेट्स कम टुगेदर यार। फिर क्या करते हैं कि हमारा रेंटल सेव हो जाएगा, जो घर में खाना बनाने आती है उस भाई का खाना ही, उसकी सैलरी बच जाएगी, थोड़ी सी शेयर हो जाएगी, तो सबका थोड़ा थोड़ा अमाउंट कम हो गया। जैसे मान लो आपका मंथली एक्सपेंडिचर पहले मान लो 10,000 हो रहा था और सबका एक्सपेंडिचर 6,000 आ गया, तो 4,000 सबने सेव कर लिया। तो 4,000 into 4, 16,000 you guys save as a group, and individually you were saving 4,000, and you started living together. Now you've got used to it. You have got to the use of savings. That money you saved, eventually आप घर से जो पैसे मंगा रहे थे वो उतने ही मंगाओगे, वो रिलीज होगा एनर्जी, कहीं तो एनवायरमेंट में रिलीज होगा, है ना? तो वो जहां पे भी रिलीज हो उसका हिसाब किताब कभी नहीं मिलेगा। तो ये वही एनर्जी है, इसका हिसाब किताब कभी नहीं मिला। लेकिन अब आपको लगा फ्यूचर में जाके अरे यार मुझे फिर से अकेले रहना है, तो अब आप वो एक्स्ट्रा 4,000 ढूंढोगे कहीं से कि कोई मुझे दे तो ही तो मेरे खर्चे बराबर आएंगे, नहीं तो मैं तो इनके साथ ही जो भी चल रहा है चलता रहेगा, है ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यू हैव गॉट बाउंड टू योर ग्रुप, ये एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि इसी एग्जाम्पल से मैं बाकी सारी चीजें समझाने वाला हूं, ठीक है? तो समथिंग सिमिलर हैपेंड हियर, दे इन देयर इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस दे हैड some mass, they came together, some mass got released, and वो उसका हिसाब किताब नहीं है अपने पास, बट अब अगर किसी को इनको अलग करना है तो that person will have to supply this much energy, and that is the reason nucleus is bound together. ठीक है? अब यहां से we are talking about one more term which is called binding energy per nucleon, savings per person. Binding energy per nucleon. Per nucleon मतलब इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पुट टुगेदर, इसको हम बोलते हैं EBN, and this is equal to binding energy total divided by the number of, यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, दिस कैन बी A, the atomic mass number, because you would eventually have these many number of nucleons, atomic mass number के बराबर, because that is actually protons and neutrons put together. Binding energy is a good measure of how stable a nucleus is. What did I say? Binding energy is a good measure of how stable a nucleus is. More binding energy मतलब more savings, group has to be more stable. Makes sense, right? अगर आपकी सेविंग्स ज्यादा हुई थी, मान लो सेविंग सिर्फ 1,000 रुपए की हुई होती, तो आपको निकलने में इतना कष्ट नहीं होगा, 1,000 रुपए कहीं से जुगाड़ लोगे आप और निकल लोगे ग्रुप से। बट अगर सेविंग 5,000 रुपए की हुई थी तो आपको फिर बर्दाश्त ज्यादा करना पड़ेगा, तो स्टेबल रहोगे, जैसे भी रहोगे, इंटरनल फाइट हो सकती है बट आउटसाइड देखोगे तो स्टेबल रहोगे, क्योंकि यू हैड लॉट ऑफ सेविंग्स। दैट मीन्स मोर बाइंडिंग एनर्जी मीन्स स्टेबल
nuclei. Less binding energy means comparatively less stable nuclei. And उससे भी ज़्यादा अच्छी मेजर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. क्यों? हमें ग्रुप की सेविंग थोड़ी ना मतलब होता है, हमें तो अपनी सेविंग से मतलब होता है. मेरी जेब से कितने पैसे बच रहे हैं. मान लो आपने बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया और सेविंग 50,000 की हो गई, लेकिन आपके 1,000 रुपये बच रहे हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है 50,000 बच रहे हैं कि 60,000 बच रहे हैं. तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी एक्यूरेट मेजर ऑफ अ स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस. ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा. इस पे क्वेश्चंस हम फिर आगे आते हैं. तो अंडरस्टैंड दिस कि जब भी स्टेबल अनस्टेबल की बात होगी तो लुक फॉर दिस नंबर in the question. Look for this number. Where this number is higher, that means atom or nucleus is stable. Okay. Now let's move on. With this approach, people try to kind of define the process or the phenomena behind protons being held together, right? So they kind of plotted a graph of this quantity versus this quantity. ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ आपको दिखाने वाला हूँ मैं अभी. विल रिफर टू एनसीईआरटी. मतलब क्या ग्राफ बनाया हमने? मास नंबर वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है. टिपिकली हमें क्या लगता है? टिपिकली आपको ये लगेगा ना, अगर इफ यू गो बैक टू माय एग्जांपल, आपको ये लगेगा कि ग्रुप को बड़ा करते जाओ, सेविंग बढ़ती जाएंगे. नॉर्मली ये लगता है ना कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही डिवाइड होंगे खर्चे, डिवाइड होंगे इसका मतलब उतना ज्यादा सेविंग होगी. बट ऐसा हुआ नहीं. व्हाट डिड दिस ग्राफ विल शो कि देयर इज अ ऑप्टिमम एटॉमिक नंबर. मतलब ग्रुप का एक ऑप्टिमम साइज था जहां पे ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल था. उसके पहले भी थोड़ा अनस्टेबल था, उसके आगे भी हुआ. मतलब आप बहुत हैवी न्यूक्लियस कर दोगे, मतलब इस बंदे को एटॉमिक मास नंबर इसको बहुत हैवी कर दोगे, सेविंग्स भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और ग्रुप थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है. अगर इसको बहुत छोटा रखोगे तो सेविंग वैसे ही कम है, और छोटा ग्रुप तो यार 2-3 लोगों का ग्रुप तो बड़ा अनस्टेबल होता है. एक भी कोई निकला तो बाकी 2 बचे तो ग्रुप रह ही नहीं गया, है ना. तो बहुत छोटा भी काम का नहीं था न्यूक्लियस और बहुत हैवी भी नहीं था. बीच के जो न्यूक्लियस हैं वो काम के थे. तो वही चीज ग्राफ में भी दिखती है. ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई दिया. स्टार्टिंग के जो लाइट इस तरीके का ग्राफ है कुछ. यहां पे है एटॉमिक नंबर, ये है EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है. तो यहां देखा कि मैं यहां से इस जगह से लेके विच इज एटॉमिक नंबर 30 से एटॉमिक नंबर 120, ये एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल दिखाएंगे. मतलब ये ग्रुप साइज जो था वो ऑप्टिमम निकला. इसके बियॉन्ड, मतलब जैसे यहां पे होता है यूरेनियम जिसका होता है ये 238, क्वाइट हैवी न्यूक्लियस, हाईली आपको मालूम है यार यूरेनियम थोड़ा भी ऐसे खुला रखा नहीं रहता, राइट. It is well packed and sealed with layers of isolations, क्योंकि यूरेनियम is a very very highly radioactive, क्योंकि इसका इतना अनस्टेबल न्यूक्लियस है कि तुरंत डिसइंटीग्रेट होता है ये छोटे छोटे अदर न्यूक्लियस में, और बहुत सारे रेडियोएक्टिव एमिशंस होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. तो इसलिए यहाँ पे लेकिन फोकस क्या है कि हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, लाइट न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है. एटॉमिक मास नंबर 30 से लेके एटॉमिक मास नंबर 120 तक वी गेट अ रेंज ऑफ हाईली स्टेबल न्यूक्लियस. ठीक है. तो वो जरा ये वाला जो ग्राफ है आपने इसका पैटर्न समझ लिया, ये ऐसा क्यों है. आई हैव गिवन यू एनालॉजी. बिगर द ग्रुप, टू बिग ग्रुप और टू स्मॉल ग्रुप, नॉट दैट स्टेबल. ऑप्टिमम ग्रुप साइज ग्रुप इज स्टेबल.
तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा नंबर से बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी में ये ग्राफ जरा एक बार रेफर करते हैं। ये ग्राफ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको डेलिब्रेट करना पड़ेगा अपने को भी। हाँ, G12 physics, टू 0 5 ना। वाओ, ला ला, थोड़ा इसको this is the exact graph what I just drew. ठीक है, so you can see, just focus on this area, atomic mass number 30 से, मतलब ये वाला पार्ट 30 कुछ यहाँ पे होगा, है ना, 30 से लेके 120 तक, मतलब ये पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हो मास नंबर जो है बढ़ रहा है, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका नाम है कांस्टेंट का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ग्रुप साइज, गो बैक टू द एग्जांपल, आपने 5 लोगों का ग्रुप बनाया, सेविंग आ गई, फिर आपने धीरे धीरे इस ग्रुप को बढ़ाना शुरू किया, आप क्या देख रहे हो कि सेविंग बढ़ नहीं रही है। यू एक्सपेक्टेड कि आप लोगों का सेम खर्चे और डिवाइड हो रहे हैं, सेविंग बढ़नी चाहिए, बट ग्राफ में ऐसा नहीं दिख रहा है। बोला कि भाई एक ऑप्टिमम साइज के बाद आपको, मतलब एटॉमिक नंबर 30 से लेके 120 तक आपकी सेविंग्स बढ़ना बंद हो गई। नाउ इट इज इन द ऑप्टिमम जोन। और 120 के बाद रादर डिक्लाइन चालू हो गया है, और इसका आप आगे बढ़ रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है। और यूरेनियम U-238 which is quite heavy, मतलब group size is quite high, it has become actually unstable. ठीक है, this is the zone of unstable nucleus. This, ये लाइन के ऊपर जितना भी दिख रहा है ना आपको, ये it's a zone of stable nuclei. This is the zone of unstable nuclei. तो जैसे जैसे आप इस तरफ आओगे नीचे, मतलब हैवी न्यूक्लियस, ग्रुप साइज बढ़ा रहे हो, तो आपका स्टेबिलिटी कम होता जा रहा है, which is quite obvious in your day-to-day life as well. So I'll explain you with the concept of nuclear force, but उसके पहले ये समझो आप कि ये day-to-day life में भी होता है। आपका ग्रुप एक ऑप्टिमम साइज से जब बड़ा होगा तो उसमें पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, क्रॉस टॉकिंग स्टार्ट होगी, अपनी लाइकिंग्स वाले सब ग्रुप बन जाएंगे। ये मेरे बंदा मेरे टाइप का है, वो मेरे टाइप का नहीं है, उसको ये समझ में आता है, ये वो पता नहीं क्या खाता है, ये पता नहीं क्या सोचता है। You will have internal subgroups and politics starts, and then you will decide, अरे यार अपन काम करते हैं, अपन 4-5 ना अलग कमरा ले लेते हैं, ये बहुत यहाँ पे बहुत बसड़ा है, राइट? यही होता है ना। तो वही चीज है कि जब आप और न्यूक्लियॉन्स ऐड करते जा रहे हो, ये सोच के कि सेविंग बढ़ती जाएगी, आप उल्टा अनस्टेबल हो गए। हाँ, लेकिन आपने बहुत छोटा ग्रुप बना लिया तो भी बात नहीं बनेगी। ठीक, अब इसको थोड़ा हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, विच इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जरा इंपॉर्टेंट है अपने लिए पॉइंट। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो एक न्यूक्लियस है मेरे पास, यहां पे न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ये न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, ये पास एक ग्रुप बना के रह रहे हैं। ठीक है, सब न्यूक्लियॉन्स हैं।
ठीक है, इस तरीके से दे आर ग्रुप टुगेदर एंड दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर इन अ फैमिली ऑफ न्यूक्लियस। अब होगा क्या कि अगर इनको बाइंड होना है, राइट, तो जब ये पहली बार बाइंड हुए होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो गई होगी। अब इनको वो सेविंग कोई देने वाला है नहीं, तो ये रुके हुए हैं वहीं पे, ठीक है। यहां पे ये मतलब ऐसा सोचा साइंटिस्ट लॉबी ने कि यार दो पार्टिकल्स, जैसे मान लो मैं एक प्रोटॉन लूं और एक फेलो प्रोटॉन लूं, अगर दो प्रोटॉन को लूं, सेविंग गई भाड़ में थोड़ी देर के लिए, जरा कंपैटिबिलिटी चेक कराते हैं, कंपैटिबिलिटी है ना, तो कंपैटिबिलिटी चेक कराते हैं इनका, तो बोले यार प्रोटॉन प्रोटॉन की तो कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स और कूलॉम फोर्स, तो सेविंग तो तब आएगी ना जब साथ में सांस ले पाओगे, तभी सेविंग की बात करोगे ना, वरना बोलो छोड़ो यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं साथ ही रहने वाला हूं। यही चीज यहां पे भी है। इसका मतलब देयर हैज टू बी another force in picture here which we have not named yet. Let's name it, let's call it nuclear force. ये होता है फोर्स किन्हीं भी दो फेलो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स, and it is very strong attractive force, और इसको नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। बाद में स्टैब्लिश भी हुई बात, ये होता है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, काफी स्ट्रांग होता है न्यूक्लियर फोर्स। ऑब्वियसली इतना तो आप गेस कर ही चुके होंगे कि इट हैज टू बी हायर देन कूलॉम फोर्स, यस और नो? न्यूक्लियर फोर्स जो हमने नया फोर्स बोला है, ये कूलॉम फोर्स से तो बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे साथ में रुकेंगे? This is attractive force. This is attractive force, and this in a proton this will be repulsive. Guys, follow कर रहे हो ना आप लोग, है ना? प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होगा? रिपल्सिव होगा। तो अगर इन लोग ये, और फैक्ट इज कि वो न्यूक्लियस में साथ में रहते हैं, और अगर न्यूक्लियस में साथ में रहते हैं, इसका मतलब जो उनको अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है, वो उनको रिपेल करने वाले फोर्स से हैज टू बी हायर, has to be a higher force. एंड कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्स की एनर्जी क्या होती है? अगर पोटेंशियल एनर्जी में एक अट्रैक्टिव फोर्स याद करो, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो नेगेटिव आती है, राइट? तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स की एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। और वही नेगेटिव मतलब वो सेविंग, जो ये चीज एनर्जी निकल गई, क्योंकि ये इनका डेट हो गया, ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो इनकी ये जो सेविंग हुई है, ये डेट इनके पास आ गया है, और वो डेट कहीं रिलीज हो गया, अब कोई आके इनको देगा तब वो चीज, तो ये नेगेटिव, और इसलिए वी कैन बी वेरी श्योर दैट दिस हैज टू बी अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर बाउंड टू ईच अदर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है न्यूक्लियस पे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आई थी? नेगेटिव आई थी, -13.6 अपॉन n स्क्वायर आई थी, माइनस साइन लगा था, तो इसलिए इट्स ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इसी तरीके से इनकी एनर्जी भी नेगेटिव होनी चाहिए, इसलिए हम बोल सकते हैं फॉर श्योर दैट देयर हैज टू बी अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन। बट नाउ अनदर वेरिएशन ऑफ दिस, कि यार अगर ऐसा है कि जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेंगे। अभी इसको, जैसे इसको लेते हैं, बीच वाले को, ये मतलब इसका अट्रैक्शन है, इसका अट्रैक्शन है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका भी, सबका अट्रैक्शन है, राइट? तो एक और डाल दो, बाहर से एक और ले आओ, ग्रुप में से, ग्रुप में एक बंदा ऐड कर लो, तो एक और अट्रैक्शन फोर्स आ गया। तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए न्यूक्लियस की। जैसे जैसे हम साइज बढ़ा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के कॉन्सेप्ट से अगर जाए तो ये तो बढ़नी चाहिए थी, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तब बोला कि हैंग ऑन, ये फोर्स हमने पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया है अभी। इसकी एक और खासियत है, कि ये फोर्स, इट्स एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स, एक्सट्रीमली
शॉर्ट रेंज फोर्स। मतलब यहां थोड़ा ध्यान देना, ये कहने की बात ये है कि ये जो भाई साहब हैं, कहने को तो ये भीड़ में है इतने लोगों की, दिस गाय इज विद सो मेनी पार्टीज गोइंग ऑन, पूरा जनता है, सब कुछ है, लेकिन उस बड़ी पार्टी में ये बंदा अपने 2-3 क्लोज फ्रेंड्स के पास एंजॉय कर रहा है, इसको बाकी किसी से मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए उस पार्टी का ग्रुप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके पास में खड़े उसके ये दोस्त, मतलब उस बड़े ग्रुप में जो उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं। तो वैसे ही ये फोर्स भी है, ये काम तब करेगा जब ये बहुत क्लोज होंगे आपस में, फिजिकली क्लोज टुगेदर, राइट, बिकॉज दिस फोर्स इज अ वेरी वेरी शॉर्ट रेंज्ड फोर्स। इसी वजह से, इसके शॉर्ट रेंज होने की वजह से आपने मोर एंड मोर जब इसमें ग्रुप में लोगों को ऐड किया तो ओवरऑल इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे उल्टा निगेटिव फर्क पड़ रहा है। लोग ऐड हो रहे हैं लेकिन एक्चुअली इसकी एनर्जी कहीं गेन नहीं हो रही है। समझ लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसकी जो सेविंग है आपने एक और यहाँ पे ला दिया तो इसकी सेविंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा इसकी सेविंग और कम हो गई, एक ग्रुप में इनएफिशिएंसीज आ गई। तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको बाइंड कर रहा है वो इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज। तो दैट एक्सप्लेन्स कि बियॉन्ड द साइज adding more and more nucleon does not give you more stability. The binding energy per nucleon, that means the savings per person, is not affected, and that's a question which comes a lot of times. Explain with the help of this curve. They will ask you question like this. All this is written in my notes that I will copy in the session folder. They will ask you explain, sometimes they ask you to draw also approximate the pattern of this, ठीक है? The question would be put up like this: with the help of binding energy curve, this is how it is termed, prove or explain why between atomic number 30, which is this, and 120, this line is almost flat, means adding more nucleons it does not increase the binding energy. Your answer would be this is because nuclear force, which is responsible for holding the nucleons together, is a very short range force. ये जो कीवर्ड है ये आपके आंसर में आना चाहिए अंडरलाइन के साथ। न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये आंसर, ये जो वर्ड कॉपी चेक करने वाला पर्सन विल सी, इट गिव यू फुल मार्क्स। इफ यू राइट पूरा स्टोरी एंड यू डू नॉट अंडरलाइन दिस वर्ड, द चांसेस आर वेरी लेस कि आप यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखनी है, न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इसको उल्टा भी पूछते हैं, with the help of this curve prove that nuclear force is a short range force. So now you just reverse your analysis. You'll say because this curve is nearly flat from atomic number 30 to 120, right, that means adding more and more nucleons does not add the binding energy per nucleon, that means the nuclear force has to be a short range force. ऐसे भी पूछते हैं वैसे भी पूछते हैं, तो दोनों तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं, बट समझना इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे एक बार वी जस्ट रीड आउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे कहना, क्योंकि लिखने के भी आते हैं कभी। ठीक है, आपने समझ लिया है, बस आपको उसको डेलिब्रेट करना है यहाँ पे लिखने में। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, i.e. practically independent of atomic number for nuclei of middle mass number 32, sorry it's not 120, it is 170. ठीक है, 170 यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस मतलब इस बेस लाइन के, ये वाली लाइन के जस्ट ऊपर तक। ठीक है,
द कर्व हैज अ मैक्सिमम ऑफ अराउंड 8 पॉइंट, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट फिगर है. मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इज बीन फाउंड फॉर एटॉमिक नंबर 56. एटॉमिक नंबर 56 का होता है Fe? नहीं, बेरियम किसका होता है? एटॉमिक मास नंबर, नॉट Fe है ना? हाँ, हाँ देखो Fe है, तो Fe है. मास नंबर इज 56. थैंक यू. ठीक है. सो कर्व हैज अ मैक्सिमम फॉर Fe 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दिस इज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी which is for Fe, and you can say Fe is at the top, right? So you can say it is the most stable nucleus, because binding energy is the maximum. More binding energy means more saving, more stable group. ठीक है. And has a value of 7.6 mega electron volt for A is equal to 238. मतलब 238 के लिए it is fairly low, which is 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहां पे ये क्या बोल रहे हैं? EBN, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर ऑन बोथ साइड्स, इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई एंड हेवी न्यूक्लियाई. आगे बात समझ में? सो वी कैन ड्रॉ सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स. पहली चीज, द फोर्स इज अट्रैक्टिव. समझाया मैंने आपको कि force has to be attractive and sufficiently strong to produce a binding energy for few mega electron volt per nucleon. The constancy, मतलब the flatness of this curve between atomic number 30 to 170 is a consequence of the fact that nuclear force is short range. मैंने बताया आपको कि beyond that adding more and more nucleons it is not helping. That means this जो भी ये फोर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए, इज वेरी शॉर्ट रेंज. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने वही चीज आपको समझाई है, वही चीज लिखी हुई है. एंड दिस थर्ड पॉइंट पे आते हैं. ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट डज इट से? A very heavy nucleus, let's say A is equal to 240. Heavy nucleus, mass number 240, has lower binding energy nucleon compared to that of a nucleus 120. मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि भाई, ये बोलना ये चाह रहा है 120 मतलब 240 वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस देन 120 वाले. क्लियर? मीन्स अगर इसको स्टेबल होना है, this guy can disintegrate into, मतलब 240 वाला can disintegrate into 2 120s and become more stable. मतलब a smaller group 240 के bigger group से अच्छा है कि आप 120 के दो smaller group बना लो, you will be more stable. That means कि जब भी न्यूक्लियर फिजन होगा, कोई हैवी न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, कोई हैवी न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, यू विल अचीव मोर स्टेबिलिटी एंड एनर्जी वुड बी रिलीज्ड. क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है. अब ये जो बढ़ती है वो क्या होती है? सेविंग जो गायब हो जाती है. इसका मतलब देयर विल बी एनर्जी रिलीज्ड. दैट मींस न्यूक्लियर फिजन विल ऑलवेज लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी. द क्वेश्चन वुड बी पुट अप लाइक दिस. With the help of binding energy curve, explain why energy is released in fission. तो आप क्या करोगे आंसर? When from the binding energy curve, it is clear that atomic number 240, when it disintegrates into atomic number 120, the binding energy per nucleon will increase. As a result, there would be energy released. ठीक है, ये अपने को लिखना है. So that was that point. उसके बाद ये बात तो ठीक हुआ. ये इसके बाद फोर्थ, हाँ ये थर्ड पॉइंट था. फोर्थ पॉइंट, कंसीडर टू वेरी लाइट न्यूक्लिया. नाउ दिस टाइम उल्टा कर रहे हैं हम. दो बहुत लाइट न्यूक्लिया जैसे कि हाइड्रोजन, कंसीडर वेरी लाइट न्यूक्लिया ज्वाइनिंग टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द फ्यूज्ड हेवियर न्यूक्लिया इज ऑल्सो मोर. मतलब अगर आपने
यहां से दो छोटे एटम उठाए, मतलब हाइड्रोजन का लेट से दो एटम लिए और वो फ्यूज होके उन्होंने बनाया हीलियम। अगर वो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं तब भी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होगी, राइट। सो these 2 points we have to understand and put somewhere in our mind कि इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इस कर्व से दोनों चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो कि न्यूक्लियर फिजन मतलब हैवियर न्यूक्लियाई ब्रेकिंग इनटू 2 स्मॉलर, हैवियर न्यूक्लियस ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, या फिर 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइनिंग टू गिव यू अ हैवियर न्यूक्लियस। इन बोथ प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। क्यों होती है एनर्जी रिलीज? बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंक्रीजिंग। Remember, binding energy is a negative energy. It is a saving which go somewhere in environment, right? तो याद रखना कि जब भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब वो रिलीज होने वाली एनर्जी बढ़ रही है। तो whenever आप पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा रहे हो इसका मतलब मोर एनर्जी इज गोइंग इनटू द एनवायरमेंट, दैट मींस स्टेबल न्यूक्लियर। तो उल्टा मत सोच लेना। सो ये पॉइंट्स जो है मेरे नोट्स में भी लिखे हुए हैं और ये आपको पता। और न्यूक्लियर फोर्स की मैंने आपको बातें बताई दी, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स का एक कर्व हम देख लेते हैं। इस पे वैसे आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट यू नेवर नो, आजकल द वे फिजिक्स पेपर इज गोइंग कभी भी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस काइंड ऑफ ए मेजर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे द वे टू इंटरप्रेट दिस ग्राफ, इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको इंटरप्रेट करना एज ए स्टूडेंट, राइट। तो को मैं समझा देता हूँ हाउ यू कैन इंटरप्रेट दिस ग्राफ। See, this is a zero line of the energy. Understand? जीरो के नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो ये है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एनर्जी और ये है पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एनर्जी। और इसके एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस। तो हमने ग्राफ क्या प्लॉट किया है? न्यूक्लियॉन के बीच की डिस्टेंस यहां प्लॉट करी है एंड वी हैव प्लॉटेड द अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। सो व्हाट वी सी, जो न्यूक्लियस के अंदर टिपिकल डिस्टेंस होती है इट इज लेस देन 8 फर्मी और 6 फर्मी बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स। एंड उसके नीचे की रेंज आप देखो, व्हेन दे आर क्लोज इनफ दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मींस देयर एनर्जी इज नेगेटिव। ये समझ रहे हो आप लोग? फॉर अ रेंज ऑफ डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसके आगे आप इस ग्राफ को देखो तो पूरा नेगेटिव जोन में है, पूरा नेगेटिव जोन में है। इसका मतलब व्हेन द डिस्टेंस इज 8 फर्मी, दिस इज लाइक 8 फर्मी का डिस्टेंस, 8 फर्मी से जब वो ज्यादा पास आ गए हैं और उसके बाद आप धीरे धीरे उनकी डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो वो नेगेटिव जोन में है। उसके पहले मतलब उससे भी ज्यादा क्लोज फोर्स इज रिपल्सिव, बट वो चीज कभी होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर रिपल्सिव होगा तो फिर तो कभी साथ में रुकेंगे नहीं। सो इन द लिमिट्स ऑफ the distance this force is purely negative। एक तो ये चीज, this force is negative, why the energy is negative, attractive force negative। and more important, distance बढ़ने के बाद देखो इसको, मतलब यहां इस जोन में क्या हो रहा है, क्या नोटिस कर रहे हो? it is almost zero। तो वही चीज निकल के आ गई। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और जो हम बात कर रहे थे कि एक बड़ी वाली पार्टी में एक बंदा अकेला, उसके 4-5 दोस्त, तो उसी से मतलब है उसको। जो दूर लोग खड़े हैं, मतलब जो दूर न्यूक्लियॉन्स हैं, उनका अट्रैक्टिव फोर्स उसको 0 होगा। सो दिस इज व्हाट द कर्व एक्सप्लेन्स। तो अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो कि विद दिस कर्व वी कैन क्लियरली सी व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नियरली 0। ओके, radioactivities can skip, is not required. Nuclear energy is not required. Let's see what is left in my so we did size and density, we did binding energy, we did this curve, nuclear force, ठीक है। अब देख लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का थोड़ा सा एक व्यू।
ये डिटेल में नहीं है हमारे पास, बहुत ही ब्रीफ में हमको करना है, इसके न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए। तो बस यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल दुनिया स्टार्ट हो जाती है। दिस इज टिपिकली अ हैवी न्यूक्लियस, वी आर डूइंग फिजन मतलब ब्रेक करना स्मॉलर न्यूक्लियस। तो हमने उस पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया, इट बिकम्स बेरियम एंड क्रिप्टन, दो लाइटर न्यूक्लियस आप देख सकते हो 144 और 89 एंड 3 मोर न्यूट्रॉन्स प्लस क्यू इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। ये क्या होती है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये चीज हमने अभी समझी है, राइट? कि जब भी एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, देयर इज अ इंक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड दैट इज द रिजल्ट, देयर इज अ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है कि ये जो ऊपर के नंबर हैं दे शुड एड अप एग्जैक्टली। तो यहां पे देखो आप 235 और 1 कितना होता है? 236। अब यहां पे आप देखो 144 89 प्लस 3 टाइम्स ये, तो 3, ये आपको एग्जैक्टली 236 मिलेगा। ऐसे ही नीचे वाले नंबर्स भी मैच होने चाहिए, नीचे वाले नंबर्स भी मैच होने, मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही गायब हो गए। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल बी कंसिस्टेंट इंटैक्ट, राइट? बट स्टिल द एनर्जी वुड बी, मतलब ऐसा नहीं ग्रुप छोटा किया तो ग्रुप में से कुछ लोग गायब ही हो गए, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है कि कुछ लोग गायब हो गए। ग्रुप रहेगा, ग्रुप छोटा हो गया और छोटे होने की वजह से वो एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक, ओके। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजन। एक एग्जांपल ऑफ फिजन का जैसे ये है, आप याद कर लेना। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको शायद लिखने के लिए आ जाए बोर्ड एग्जाम्स में कि राइट एन एग्जांपल, व्हाट इज फिजन, राइट एन एग्जांपल। तो अब आपने फिजन तो लिख दिया कि भाई इट इज ब्रेकिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, लिख दिया आपने एज ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी रिलीज। बट एग्जांपल भी तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो एक एग्जांपल, अगर आप 2 याद कर लो तो बहुत अच्छा है, एक तो मिनिमम। सो दिस इज कॉल्ड फिजन। बेसिकली फिजन जो हमारा आजकल न्यूक्लियर पावर पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो टिपिकली वर्क ऑन फिजन ओनली। ठीक है, फ्यूजन इज रिवर्स प्रोसेस व्हेन 2 लाइटर, यहां पे क्या है? 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है, एटम्स है। 1s2 is what? Deuterium, guys. So deuterium combining, giving you a helium and 1 neutron. And again, this is the Q value. This is the Q value, energy released. एक चीज याद रखो, इस पे MCQ आता है, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, सन इज ऑल्सो स्टार बाय द वे। ठीक है, सो एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। And to be precise, it is thermonuclear fusion. It is thermonuclear fusion. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what is the energy behind stars continuous energy? That it is the continuous fusion which happens. ऐसा बोला जाता है कि पता नहीं, मतलब I think I'm not sure about the data. Some 100 billion years के लिए सन के पास ये है करने के लिए, सम ऑफ बिलियन, मतलब बहुत बड़ा टाइम हो गया। उसके बाद क्या होगा पता नहीं, क्योंकि सन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे जिंदा करेंगे यहाँ पे, है ना? अपने क्या मानोगे हम, है ना? हम तो निपट चुके होंगे बहुत आराम से, लेकिन जो भी होगा उस टाइम। ठीक है, सो द फ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन फॉर सन एंड द स्टार्स। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं गाइस, इसके मास डिफेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। मास डिफेक्ट के क्वेश्चन का एक फ्लेवर होता है, उसमें हमें करना कुछ नहीं होता है। जो स्टार्टिंग का मास है और जो फाइनल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का मास है, उसका डिफरेंस, और उस डिफरेंस को हमको 931 से मल्टीप्लाई करना होता है, फाइंड आउट द एनर्जी रिलीज्ड। बस इतना को करना है। तो वी विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हो, 18 पेज नंबर 413 पे गाइस। ये न्यूमेरिकल की दुनिया में आ गए हम लोग की PYQ जो बुक है
उसमें क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग तो आए हैं, ठीक है। लेट्स कॉल इट मास डिफेक्ट न्यूमेरिकल्स। एकदम इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं ये, मार्क्स देने के लिए आते हैं आपको, ठीक है। सब कुछ जो करना होता है और डेटा उसमें क्वेश्चन में दिया होता है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है, 1H1 प्लस 1H3, ये तो कंबाइन हो रहे हैं और बन रहा है 1H2 और यहाँ पे एक और 1H2, राइट। अच्छा, तो अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इनका टोटल मास क्या है, फिर इनका टोटल मास क्या है, फिर डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद पता चलेगा मास डिफेक्ट है। जो मास डिफेक्ट आएगा उसको हमको 931 से डेल्टा एम निकालने के बाद उसको 931 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सब कुछ दिया हुआ है, देखो मास ऑफ 1H1 दिया हुआ है 1.007825 U, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो जाएगा, 1H1 का मास दिया हुआ है 1.00। आप लोग देख के डाल सकते हो वैल्यूज, कुछ ऐसा खास नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल सबको ऐड कर रहा हूं। और क्या है 1H3 क्या दिया हुआ भाई, 3.016049। क्यों ऐड किया इनको मैंने, क्योंकि रिएक्टेंट्स में ये दोनों थे, तो एक एटम इसका था, एक अच्छा मान लो यहाँ पे अगर इसके 2 एटम होते तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, वेरी ऑब्वियस, राइट। तो वो चीज ध्यान रखना। टिपिकली यू विल गेट द रिएक्शन वो देंगे आप, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करके मुझे बताओ यार, मुश्किल काम है मेरे लिए। 4.0238। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोडक्ट जरा बता दो फटाफट, 2 इंटू दिस, 2 इंटू मास ऑफ 1H2, 4.0, बस इतना ही, 4। डिफरेंस निकाल के बताओ मुझे इसका। दिस एक्चुअली मास ऑफ प्रोडक्ट इज हायर, सो दिस विल बी एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, ठीक है। दिस माइनस दिस कर दो आप, डेल्टा एम, सबट्रैक्ट द हायर वैल्यू, सॉरी लोअर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू। सो आप 0.0042 whatever, right? Now the energy equivalence would be delta m into this, मतलब जो भी ये आया है आपका डेल्टा एम उसको 931 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है 1 U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अंडरस्टैंड, इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इट्स अ कस्टमाइज्ड रिएक्शन जो उन्होंने बना के दिया है। इसमें क्या हो रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट इज एक्चुअली मोर, तो मास रिलीज होने के बजाय मास उल्टा इसका बढ़ रहा है। दैट मीन्स यू वुड हैव टू सप्लाई दैट, दिस विल बी ए एनर्जी एब्जॉर्बिंग इक्वेशन, ठीक है। इसलिए उन्होंने पूछा भी है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। तो इन दिस केस एनर्जी वुड बी एब्जॉर्ब क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इज लेस। ये कर लोगे, डेल्टा एम इंटू 931, जो डेल्टा एम आया है इसको 931 से मल्टीप्लाई करना। I will leave the calculation for later. Let's come to
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 यहां बोल रहे हैं कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4 टिपिकली, राइट? 2He4 मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब इस न्यूक्लियस की वो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है, तो करना क्या होगा? पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, वो होता है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास। देखो ये फॉर्मूला वैसे सब बेकार का ही है, इसमें करना क्या है? प्रोटॉन का टोटल मास, न्यूट्रॉन का टोटल मास ऐड करना है यार, है ना? तो आपको फॉर्मूला पसंद है फॉर्मूला, नहीं तो लॉजिकली सोचो, इन दोनों का मास ऐड करना है बस, ठीक है? दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये ज्यादा होता है और एक्चुअल हीलियम न्यूक्लियस थोड़ा कम होता है, वो दिया होगा आपको। देखो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस देखो दिया हुआ है, ये m जो है ये अपने को दिया हुआ है, विच इज द थर्ड डेटा 4.00280 दिख रहा है। दिस इज द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अब आप क्या करो, Z वो तो 2 है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? 1.0007828, ठीक है? प्लस ये फिर से 2 आ गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086665, ठीक है? और इसमें से माइनस वी हैव टू डू मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस 4.002800। ये मुश्किल काम करके मुझे इसका डेल्टा एम बताओ। मेरा मन नहीं करने का। अरे रुको रुको, लिखने दो। 0.U। अब ये हो गया मास डिफेक्ट, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाइंडिंग एनर्जी के लिए, क्या कर दोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 931 से। सो 0.0, भाई कोई और भी एक बार वेरीफाई कर लो। वैसे डेटा इज नॉट रियली important during learning, but फिर भी we don't want to be in the bad side of calculation। जो भी मास डिफेक्ट आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 931 से, to get the binding energy। whatever। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है कि पूरा पूछा है? हाँ, अल्फा पार्टिकल। सो दिस विल बी द आंसर व्हाटएवर दिस कम्स। बात समझ में आ रही? क्या कर रहे हैं हम लोग? जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा था मास डिफेक्ट का, कि व्हेन प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करो थोड़ा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू मास ऑफ द न्यूक्लियस, और वही मास डिफेक्ट होता है। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज released, that is called binding energy। ये बात समझ में आ रही है सबको, है ना? You getting it? So this is the equivalent amount of energy, this is the mass defect, this is delta m guys। डेल्टा m को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 931। अच्छा 931 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि वन यूनिफाइड मास 1U is equivalent to 931, so these many will be into this, right? तो इस तरीके से
मुझे याद थोड़ी ना हीलियम न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल की फाइंडिंग एनर्जी, चेक करो पीछे से आंसर। ऐसे ही आ रहा है, हाँ। मानना ही पड़ेगा, मैंने कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मेरा मन नहीं है। इधर क्या चल रहा है भाई देवांग, मन नहीं कर रहा है? कर लो यार, एक आध क्वेश्चन तो कर लो, आते हैं ये, ठीक है। So the point is just do this delta m calculation and उसको 931 से अभी क्वेश्चन नंबर 43 और 2025 में आया है, इसमें भी क्या पूछा गया है, फाइंड द क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू इज नथिंग बट द एनर्जी रिलीज्ड, जो आपने भी निकाला था वही क्यू वैल्यू। फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। दिख रहा है, दो कार्बन एटम्स को मिला के हम बना रहे हैं नियॉन, और एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है। 43 क्वेश्चन 43 ये लास्ट ईयर ही आया है अभी। गाइस ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर ये नहीं करके आओगे एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा वो। क्या पे क्या हो रहा है, 12C6 एक और 12C6, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, नियॉन 1020 ये बन रहा है, प्लस एक 2He4 बन रहा है। देखो सब कुछ दिया हुआ है अपने को, मास ऑफ ये दिया हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स दैट विल बी 2 into 12.0, जो 12 भी है 24। मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा, नियॉन, नियॉन क्या है 19.992439, राइट। और प्लस इसमें अल्फा पार्टिकल का मास आपको ऐड करना पड़ेगा, दिस विल बी 4.002603। एग्जाम में अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं? नहीं, इन क्वेश्चंस में नहीं ले सकते हैं। आईडी तो करना है, इसमें क्या दिक्कत है यार? नहीं सर, वो 931 से मल्टीप्लाई नहीं, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता, क्योंकि वो क्वेश्चंस कैलकुलेशन के लिए दिए जाते हैं, वो दिस इज ओनली फॉर कैलकुलेशन ओनली। तो अब वो उसमें वही छोड़ दोगे तो फिर नंबर के साथ क्या मिलेंगे? तो यू हैव टू डू। अरे एक आध क्वेश्चन तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। सो कितना आ रहा है भाई, 23 पॉइंट्स किया, 23.9950। सो डेल्टा एम कितना आ जाएगा, 0.00 whatever, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज मोर 24, मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, that means there will be some mass release, some energy release. So this is going to be a exothermic reaction, energy released, exothermic। और कितना एनर्जी रिलीज होगी, आप ये जो डेल्टा एम आया है एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू विल बी डेल्टा एम इंटू वॉट एवर। यार अभी चलो खत्म करना है, इसको खत्म करते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे हमको क्यू वैल्यू ये दिया हुआ है, मतलब एनर्जी रिलीज दी हुई है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब वो डेल्टा एम एंड ऑल दैट, इट इज ऑलरेडी गिवन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि 2 एटम चाहिए आपको एक रिएक्शन के लिए। ड्यूटेरियम के यू नीड 2 एटम्स फॉर दिस मच एनर्जी। अब कहानी ये है कि 2 kg
ड्यूटेरियम में कितने एटम होंगे? केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट बात है ये तो। हाउ वी कैन फिगर आउट कि 2 kg ड्यूटेरियम में कितने एटम्स, ये कितने ये होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स? हाँ, तो एवोगाड्रो का क्या अचार डालना उसका? 2000। हाँ 2000 क्यों किया आपने? बेसिकली 2 ग्राम एटम्स, बिकॉज ड्यूटेरियम इज, अगर हम इसका वो देखें एटॉमिक मास तो 2 हुआ, तो उसके इक्विवेलेंट ग्राम अगर लेंगे तो इसमें हमारे पास कितने होंगे? राइट, अभी हमारे पास कितने हैं? 2 kg, तो ये हो जाएगा 6.02 10 to the power 23। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दिस इज 2000 ग्राम्स, लेकिन अब इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि दिस इज फॉर 2 ग्राम्स वी हैड दिस, सो 2000 डिवाइड बाय these many atoms you have of what? Of deuterium, और हर 2 से हमको कितनी एनर्जी मिल रही है? इतनी एनर्जी मिल रही है। तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी आपको जो हो जाएगी, यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दिस, और उसको भी आपको वापस फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी 2 एटम्स आर गिविंग यू दिस मच, एवरी 2 एटम्स। तो ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये नंबर ऑफ एटम्स है। मान लो इसे मतलब 10 होते हैं, सो 10 में से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हर 2 से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जितने आएंगे उसको वापस 2 से आप डिवाइड करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी योर टोटल एनर्जी। अब बल्ब के लिए, लैम्प के लिए आपको कितना चाहिए? लैम्प को चाहिए 800 वॉट, मतलब इसको अगर जलना है तो इट नीड्स 800 जूल पर सेकेंड, 800 जूल्स पर सेकेंड। तो अब नंबर ऑफ सेकेंड्स आपके आएंगे, नंबर ऑफ सेकेंड्स, वो जो टोटल एनर्जी आपने निकाली होगी वहां से, डिवाइडेड बाय 800, ये नंबर ऑफ सेकेंड्स आएंगे। सो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको इसको डिवाइड, मान लो ये पूरा नंबर आया कुछ x, ठीक है, तो इस x को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 66, दिस विल बी नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको लास्ट में करना है। ओके देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। पहले क्या किया हमने, 2 के, ये हमको समझ में आया कि 2 kg ड्यूटेरियम में मतलब 2 ग्राम एटम्स, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो, या एटॉमिक मास होगा वो 2 होगा, तो 2 ग्राम में इतने एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। ये बात समझ में आ रही है? 2 ग्राम्स में एवोगाड्रो के बराबर ये होंगे एटम्स, तो भाई 2 kg में कितने होंगे? तो दिस इंटू 2000 डिवाइड बाई 2, ये 2 से डिवाइड किया, 2000 मल्टीप्लाई किया, ये नंबर ऑफ एटम्स आए। इन नंबर ऑफ एटम्स को फिर से 2 से डिवाइड करके जो नंबर आया 3.27 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद ये कहानी। सर ये वाले फॉर्मूले में एनर्जी हमें जूल्स में चाहिए, और जो हमें निकाले वो, हाँ, तो वो एक चीज और भी करनी पड़ेगी यहाँ पे, मैं स्टेप को भूल गया, सॉरी। ये जो एनर्जी आपका आंसर आएगा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये आंसर जो आप मल्टीप्लाई करोगे जब, सो मान लो आपके एनर्जी आई कुछ E whatever, E mega electron volts, then you will first multiply it with 10 की पावर 6, so that will be electron volts, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप जाएंगे 1.6 10 to the power minus 19, तो पहुंचोगे। क्वेश्चन लास्ट में ही करना है, देखो
हाँ मतलब थोड़ी तो नाइंसाफी है। हाँ तो मिल जाएंगे 1 मार्क्स तो डेफिनेटली 1 मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। अगर साहब ये जो मैंने जैसे किया है थोड़ा उसको और बेहतर तरीके से करोगे आप। थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम के बाद में है। हाँ बताओ। 6 साल किया है, इसके बीच में एक लीप ईयर भी था, मतलब आएगा उतना करोगे, इतने साल की बात है यार, ठीक है एक आध लीप ईयर भी चलेगा, एक आध दिन एक्स्ट्रा या कम, है ना। लीप ईयर से क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे और क्या। वैसे लिख सकते हो ये कमेंट में, आई वॉज कंफ्यूज अबाउट लीप ईयर बट स्टिल आई डिड इट। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज यार, मैं क्वेश्चन देख रहा था तो मैं भूल गया। न्यूक्लियर फोर्स, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन मैं बताना अभी भूल गया इसको। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इट इज सेम फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये याद रखो चीज, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बताया हमने, इट इज सेम फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो हो गए न्यूक्लियस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। सो अभी विद दिस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो, with this concept question number 29 देखो, inside a nucleus the nuclear forces between proton 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 neutron and this, the answer would be D. So this is I'm just scanning over the questions कि कुछ बचा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर करोगे आप लोग? अभी ग्राफ दिखा था आपने, डी लुक्स क्वाइट स्टीप, ऐसा बिल्कुल जुप। आई थिंक शुड बी ए और बी। ए लुक्स क्लोजेस्ट, ए लुक्स क्लोजेस्ट। हाँ एक्चुअली बी भी हो सकता है, क्योंकि बी में 56 इज द मोस्ट स्टेबल आई थिंक। हाँ पूरा नहीं दिया उन्होंने शायद, तो मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। आंसर क्या है देखो उसमें ए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कभी कभी, क्योंकि इन्होंने टिपिकली अगर शेप मैच करोगे आप तो आंसर ए है पक्का, और अगर वो 56 में मोस्ट स्टेबल का देखोगे तो बी आता है, लेकिन बी जो है शेप से मैच नहीं कर रहा है, तो ए शेप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो वी विल गो विद ए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। और कभी कभी ऐसा भी होता है डियर, ये जो मैं बताऊं, इन्होंने जो प्रिंटिंग किया होगा ना, पेपर में जो आया होगा उसमें बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार मैंने देखा, एक बार जेईई मेंस का क्वेश्चन था, मैकेनिक्स का ग्राफ था, तो ऐसा ब्लॉक ऐसा बना हुआ था और मैं समझा फोर्स समझ में नहीं आ रहा कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन जो आंसर कीज दिए मैच नहीं कर रहे, तो मैंने एक्चुअल पेपर निकाला, उसमें वो देखा वो क्वेश्चन, उसके डायग्राम में बिल्कुल क्लियर था और उससे आंसर सही आ रहा था एकदम। तो कभी कभी वो एक्चुअल पेपर से यहाँ ट्रांसफर करने में भी ना इनका शेप और ये वैल्यू जो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उन्होंने जो शायद हो सकता है 56 का जो लाइन हो ना बिल्कुल पीक पे ही होगा वो, तो इसलिए वो करेक्ट ही, वो कंफ्यूजन ऐसा रहता नहीं है। ठीक है, और क्या है क्वेश्चंस, बस देखो। क्वेश्चन नंबर 10, अभी इतना देर मैंने समझाया आप लोगों को, देखते हैं कि किसको ये चीज सही में समझ में आई है। असर्शन रीजन, A is true, R is false. Assertion सही है। The binding energy per nucleon is practically constant for mass number this. अभी देखा हमने ग्राफ में, nuclear forces between nucleons for mass number are not, it is actually short range, right? So reason is
फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। सैचुरेशन प्रॉपर्टी वही होती है कि मतलब एक डिस्टेंस से आगे जाओगे तो जीरो हो जाता है फोर्स, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, द सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस ड्यू टू द फैक्ट दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब एक डिस्टेंस के बियॉन्ड दे बिकम जीरो, दैट इज द सैचुरेशन। Guys, beyond this you will get questions only of mass defect overall. अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 44 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद आप लोग जा सकते हो। 44 का सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कर्व। बताया था मैंने भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, राइट।